हर बदलाव एक सोच से शुरू होता है। हर सोच एक अवेयरनेस से जन्म लेती है और हर अवेयरनेस एक बेटर फ्यूचर की फाउंडेशन होती है। नमस्कार, गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आज का दिन सिर्फ एक वर्कशॉप का दिन नहीं है। आज का दिन है लर्निंग का, ग्रोथ का, अवेयरनेस का, नेटवर्किंग का और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का। Whether you are joining as a student, psychologist, counselor, educator, social workers, researchers, professional, parents, or passionate learner, today you are a part of national movement dedicated to mental health awareness and personal growth. On behalf of Excellent Opportunities Association, I extend my heartfelt welcome to all our respected guests, speakers, presenters, and participants join us from different states and regions of India. Welcome everyone. Creating a positive environment before we begin, I would like to everyone to remember one important thing. There is no perfect person in the world. Everyone faces challenges, everyone experiences stress, everyone has moment of self-doubts, but the strongest peoples are not those who never struggles. The strongest peoples are those who learn, grow, seek supports, and keep moving forward despite challenges. And that exactly why we are gathered here today to learn, to share, to support, and to grow together. Because mental health is a luxury, it is a necessity. Mental health is not weakness, it is awareness, strength, and self care. Mental health is not only for experts, it is for every student, every professional, every teachers, every parents, and every member of society. Dear participants, today I want here one of you to feel confident and comfortable. This is not an examination hall. This is not a place where anyone will judge you. This is a platform of learning and opportunities. Whether you are presenting for the first time or participating for the first time, remember, every expert was once a beginner, every speaker was once nervous, every successful person started with a single step. So participate actively, share your thoughts confidently, ask questions fearlessly, present your ideas proudly, because your voice matter, your experiences matter, and your growth matter. Behind every meaningful initiative stands a vision, and behind every vision stands a leader who dares to turn dreams into reality. This national workshop has been organized under the guidance of the leadership of the founders of Excellent Opportunities Associations, leaders whose visions goes beyond certificates and programs, a visions focused on creating opportunities, empowering individuals, supporting communities, and inspiring positive change. Through continuous effort to awareness, education, counseling, rehabilitation, professional development, and social welfare, Excellent Opportunities Association is working to build a society where every individual get an opportunity to learn, grow, and succeed. It is now time to welcome the person whose dedication, commitment, and vision have made this national workshop possible. Knowledge creates confidence, confidence creates action, and action creates positive change. Friends, I request to everyone to fill the chat box with your readings and virtual applause. Let's welcome to great enthusiasm and respect, founder of Excellent Opportunities Association, for the official welcome address and opening remarks. A big virtual round applause for our respected founder. The stage of the stage is yours. Thank you, everyone. Together we learn, together we grow, together we empower.
You're most welcome, the co-founder of Excellent Opportunities, Kamlesh Kumari. Respected speakers, presenters, guests, and dear participants, a very warm welcome to all of you. On behalf of Excellent Opportunities Association, I heartily welcome each and every participant to the National Workshop on Mental Health Awareness 2026. आप सभी की उपस्थिति ये दर्शाती है कि आप सभी लर्निंग, सेल्फ डेवलपमेंट, प्रोफेशनल ग्रोथ और सोशल इम्पैक्ट के लिए कितना कमिटेड है। हर नई लर्निंग एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आई है और हर एक अपॉर्चुनिटी किसी न किसी की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर क्रिएट करती है। आज का वर्कशॉप सिर्फ नॉलेज गेन करने का नहीं है, बल्कि इसमें आप अपने आइडियाज भी शेयर कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, अपना नेटवर्क बना सकते हैं और एक दूसरे के थॉट्स से इंस्पायर हो सकते हैं। मेरा सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि आप इस वर्कशॉप के हर एक सेशन को एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, अपने थॉट्स कॉन्फिडेंटली शेयर करें, क्वेश्चंस पूछें और इस अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम बेनिफिट लें। Lastly, I would like to say that let us learn together, grow together, work together to build a mentally healthier, strong, and more compassionate society. Once again, thank you for being a part of this wonderful initiative. Wishing you all a productive, inspiring, and successful workshop experience. Happy learning and best wishes to everyone. Thank you. Jai Hind. Thanks to Mrs. Kamlesh Kumari, the co-founder of the Excellent Opportunities. अभी बीच में आ रही है MSW सोशल वर्कर्स, द कोऑर्डिनेटर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स, मिस्टर तेज सिंह। मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि ये भी कुछ यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज इस कार्यशाला मेंटल हेल्थ अवेयरनेस में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रूप में आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए एक सम्मान की बात है। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग दिया, इतनी मेहनत की। विशेष रूप से हमारे संस्थापक, हमारे सर जो है, इनका धन्यवाद करता हूं, हमारी टीम का, जिनके प्रयासों के कारण आज हम इस विशेष चर्चा में एकत्रित हुए हैं। हम अपने जीवन में किसी न किसी परेशानी, टेंशन, एंजाइटी या कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं। कभी पढ़ाई का प्रेशर होता है, कभी नौकरी की चिंता होती है, कभी पारिवारिक जिम्मेदारी होती है, कभी भविष्य को लेकर हम चिंतित होते हैं। ये सारी चीजें हमें मानसिक रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। लेकिन अक्सर हम अपनी शारीरिक समस्याओं के बारे में तो बात कर लेते हैं, जबकि अपनी मानसिक परेशानियों को हम अपने अंदर ही दबा कर रखते हैं। यही कारण है कि ये जो हम वर्कशॉप करने जा रहे हैं, ये मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक होना है और दूसरे लोगों को भी जागरूक करना आवश्यक है। आज की ये जो वर्कशॉप है, हम सभी को सीखने, समझने, अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्रदान कर रही है। मुझे विश्वास है कि हमारे बीच जो स्पीकर होंगे वो अपना ज्ञान, अनुभव और हमें बहुत कुछ नया सीखने का अवसर देंगे। मैं सभी प्रतिभागियों से निवेदन करूंगा कि वे पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का भी प्रश्न हो, वो अवश्य पूछें। आपके जो अनुभव हो उनको जरूर साझा करें, जो अनुभव होंगे वो जरूर साझा करें, क्योंकि सीखना केवल सुनने से नहीं बल्कि संवाद और सहभागिता से भी होता है। हो सकता है यहाँ से मिली कोई जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। हो सकता है कि आज सीखी गई कोई बात आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने में सक्षम बनाए। एक सोशल वर्कर होने के नाते मेरा मानना है कि हम मानसिक स्वास्थ्य केवल एक व्यक्ति का विषय नहीं है, बल्कि पूरे समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब घर में कोई एक व्यक्ति बीमारी से ग्रसित होता है तो पूरा परिवार बीमारी से ग्रसित हो जाता है। जब कोई एक व्यक्ति हमारी फैमिली में स्वस्थ होता है, तभी उसका परिवार भी स्वस्थ होता है, और जब परिवार स्वस्थ होगा तो हमारा समाज भी स्वस्थ होगा, हमारा समाज भी मजबूत बनेगा। आज के जो स्पीकर्स है, पार्टिसिपेंट है, उन सबका धन्यवाद करता हूँ और उनसे आशा भी करता हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, जो पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, उनको सिखाएंगे, ताकि हम जब सोसाइटी में जाएं इस वर्कशॉप के माध्यम से जो हम यहाँ से चीजें सीखेंगे उनको सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि मानसिक बीमारी एक तरह की ऐसी बीमारी है कि लोग इस पे बात करने से झिझकते हैं। कई लोग ऐसे देखे हैं जो इन चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, या हमें पता नहीं होता है कि हमें मेंटली प्रेशर है या कोई और चीजें हैं। हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाएंगे, लोगों को सुनेंगे, उनका सहयोग करेंगे और एक संवेदनशील और सकारात्मक समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनसे या जो स्पीकर है उनसे सीखने की कोशिश करेंगे और अपने सवाल
जरूर पूछें। जिनके मन में भी कुछ विचार होंगे वो जरूर साझा करें। थैंक यू। जय हिंद। Thank you, sir. Respected sir. Ladies and gentlemen, as we move forward in today's workshop, we are about to begin our first presentation. Before inviting our first presenter, I would like to everyone to think about a simple question. What is the first thing that shaped our life? Is it our education? Is it our family background? Is it our opportunities? Is it our environment? While all these things are important, there is something even more powerful that influences every decision we make, every challenges we face, every goals we pursue. That powerful factor is our mindset. Our mindset determines how we look at ourselves. It determines how we react to failure. It determines whether we see problems as obstacles or opportunities. It determines whether we give up or keep moving forward. Friends, two people can face exactly the same situation. One person may only see difficulties, the other may see possibilities. One may focus on what is missing, the other may focus on what is available. One may stop trying, the other may stop, continue growing. The difference is not just always the situation, the difference is often the mindset. And that is why today first topic is so important. Before we invite our presenter, I would like to everyone to take a moment and reflect silently. Think about a challenge you have faced in the last year. Maybe it was related to studies, maybe it was related to work, maybe it was related to family, maybe it was related to your health, maybe it was something personal that nobody else know about. Now ask yourself, what helped me survive that challenge? Was it strength? Was it support from loved ones? Was it faith? Was it determination? Was it my mindset? Many times, the reasons we overcome difficult situations is because somewhere inside us, there remains a small belief that things can improve. That belief is the foundation of a positive mindset. Positive mindset is often misunderstood. Many people think positivity means pretend that everything is perfect. Some people think positivity means ignoring pains. Others think positivity means always being happy. But positivity is much deeper than that. A positive mindset does not mean life is easy. A positive mindset means choosing hope even when life becomes difficult. A positive mindset means accepting reality while believing in your ability to improve it.
A positive mindset means learning from failures instead of being destroyed by them. A positive mindset means saying, yes, this situation is difficult, but I will do my best. Positive peoples are not peoples who never face problem. Positive peoples are individuals who refuse to let problems define them. They understand that challenges are temporary, growth is possible, and every setback contains a lesson. Mental health and positive thinking are closely connected. When we think positively, we experience less emotional distress. We become more resilient. We develop confidence. We improve our relationship. We become better problem solvers. We recover more quickly from disappointments. Research around the world has shown that optimistic individuals often cope better with stress and adversity. This does not mean positive people never feel sadness. It means that do not stay trapped in negativity forever. It means they do not stay trapped in activity forever. They learn how to move forward, and that is one of the greatest life skills anyone can develop. Friends, let me share a short story. Let me share a short story. Two seeds were planted in same soil, but both faced the same weather. Both received the same sunlight. Both experienced the same rain. One seed kept thinking, what if I fail? What if the weather becomes bad? What if I cannot grow? And because of fear, it remained buried beneath the soil. The second seed thought, I do not know what will happen, but I will try. I will grow one day at a time. Slowly, it emerged from the ground. It grew roots, it developed leaves, and eventually it became a strong tree. The difference was not the environment, the difference was the willingness to grow. Friends, many times in life we become that first seed. Fear prevents us from moving forward, doubt prevents us from taking actions, negative thoughts convince us that is impossible, but growth begins the moment we decide to try. And now it gives me the great pleasure to invite our first presenter, a presenter who is going to share valuable insight on a topic that has the power to transform lives. Please join me in welcoming Mrs. Manju from Chhattisgarh. प्रेजेंटर आपका टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड एंजाइटी. मंजू जी प्लीज ऑन करिए अपना. यू आर मोस्ट वेलकम इन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज एसोसिएशन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वर्कशॉप्स. मंजू फ्रॉम छत्तीसगढ़. यहाँ पर स्क्रीन पे ऑप्शन दिया गया है मोर के पास जो है स्टार्ट शेयर के पास आप अपना पीडीएफ को ओपन करें प्रेजेंटेशन को और कनेक्ट हो. अब मंजू जी आवाज आ रहा है आपको? उन्नति देसाई. उन्नति देसाई जी सर. अपना प्रेजेंटेशन ऑन करना. मुझे करना है सर. यस. ओके. यहाँ पर स्क्रीन पे ऑप्शन होगा स्क्रीन शेयर का. पीडीएफ अपना प्रेजेंटेशन ऑन करके शेयर स्क्रीन करना.
ओके, सो स्टार्ट कर सकती हूँ सर? Yes, yeah, you can continue. You're Yes. most welcome, Punti Desai. Thank you, sir. Namaste, everybody. Har Har Mahadev. I am Unnati Desai. I am from Surat, and today's topic is positive mindset. Thank you, sir. आपने हमें चांस दिया presentation देने का. So, what is positive mindset? Can anybody tell me? Notes आप इसमें लिख सकते हो मैसेज में. What is positive mindset? Quickly, in one word. एक शब्द में लिख सकते हो. What is positive mindset? Anybody from the room? कुसुम जी, सैमसन, नीनी जी, सम्राट. किसी का माइक अगर Always म्यूट नहीं hopeful. किया है तो प्लीज माइक को म्यूट कर लें अपना. प्लीज चेक इट. Yes, someone has written always hopeful. Thank you, Venkatesh Prasad sir. Yes. So let us move ahead. If you want to write the answer, you can keep on writing it. Please be interactive. We all are learners and we all are trainers over here. तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो आपको हम सपोर्ट कर पाएंगे अच्छे से. It is always give and take. So, what is positive mindset? What does positive mindset means? Looking for solution instead of problems. We all have अपनी life में problems ही होते हैं. We have to find a solution for it, right? Believing in your ability to learn and grow. अगर आप खुद को ही बिलीव नहीं करोगे, खुद को ही नहीं जानना चाहोगे या नहीं जान पाओगे, तो आप ग्रो कर ही नहीं पाओगे. स्टेइंग होपफुल ड्यूरिंग दी चैलेंजेस, राइट? सो चैलेंजेस तो हर लाइफ में हर लोगों को आनी ही है. ऐसा कोई बंदा है यहाँ पे जिसको चैलेंजेस नहीं आती है? यस और नो? चैलेंजेस आती है सबको? यस और नो? एटलीस्ट कम ऑन पीपल, प्लीज पार्टिसिपेट. किसी को चैलेंजेस नहीं आती है? बिल्कुल आती है. वी आर नॉट Yes. इन एन आइलैंड. Yes, so definitely. So if challenges we have, we should always focus on solutions rather than the problems. So here I wish to share the quote, your thoughts create your reality. अगर हम जो जैसा सोचेंगे वैसा ही हम हमारे रियलिटी में ला पाएंगे. Oh, it's not moving. Okay. So why positive thinking matters? मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर मुझे सोचना ही है तो मैं पॉजिटिव क्यों ना सोचूं? Why I should think negative? सोचना ही है ना, दिमाग यूज ही करना है, तो why should I think negative? ऐसा भी नहीं है कि पूरे टाइम नेगेटिव पॉजिटिव ही होती हूँ. Yes, I am also a human और मैं भी नेगेटिव होती हूँ, बट वी हैव टू कीप ऑन स्विचिंग अवर सेल्फ ऑलवेज कि नेगेटिव थॉट सबको आते हैं, बट हाउ टू गेट इनटू द पॉजिटिव थिंग इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग. सो फायदे क्या है पॉजिटिव थिंकिंग के? बेटर मेंटल हेल्थ. आप खुश रहोगे, अच्छे रहोगे, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी. हेल्थ अच्छी रहेगी तो मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी. स्ट्रेस थोड़ा सा रिड्यूस होता है. आजकल आप देखोगे एवरीबडी नोज, हाई मुझे एंजाइटी हो गई, मुझे स्ट्रेस हो गया. इट इज यूज लाइक एंड गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग, एवरीवन इज यूजिंग दिस वर्ड. सो स्ट्रेस रिड्यूस होता है. रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो, आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ हो, एम्प्लॉयज के साथ हो, डियरीज के साथ हो, फादर मदर के साथ हो, किसी के साथ हो, वो रिलेशनशिप इंप्रूव होती है. सो पॉजिटिव थिंक करने से हायर कॉन्फिडेंस, हमें कॉन्फिडेंस भी मिलता है. डेफिनेटली अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव करोगे. बेटर परफॉर्मेंस एट वर्क एंड इन लाइफ. अगर ये सारी ऊपर वाली 4 पॉइंट्स है वो सही जा रही है तो परफॉर्मेंस ऑफ वर्क इन बेटर होगा. सो हमें ये सोचना है कि हमें पॉजिटिव रहना है या नेगेटिव रहना है. डेफिनेटली पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा. नेगेटिव क्यों रहना है अगर सोचना ही है तो? सो हियर आर फ्यू लेम एंड वर्ड्स वेयर आई हैव यूज्ड. माइंडसेट पॉजिटिव रखना चाहिए, नेगेटिव रखना चाहिए. पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसमें क्या फर्क है? सो नेगेटिव माइंडसेट में क्या होता है, हम क्या सोचेंगे? आई कांट डू दिस. उससे अच्छा हम सोच सकते हैं आई कैन लर्न दिस. हमसे मिस्टेक होती है, डेफिनेटली सबसे मिस्टेक होती है. ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया आई कैन नॉट डू दिस, गिव अप करेंगे, या फिर आई कैन लर्न दिस, नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक नहीं करेंगे, दूसरी मिस्टेक करेंगे. सो दैट वे ओनली वी विल बी एबल टू लर्न. सो नेगेटिव माइंडसेट क्या होगा? प्रॉब्लम स्टॉप्स मी. सो प्रॉब्लम्स मुझे स्टॉप करती है. मैं तो ये सोचूंगी कि प्रॉब्लम से हम लर्न करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम सेम प्रॉब्लम या सेम मिस्टेक हम नहीं दोहराएंगे. आई फेल्ड. सो आई फेल्ड. मुझे नहीं लगता कि हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस पीपल है, जो अंबानी जी है, टाटा है, ये कभी मिस्टेक की ही नहीं होगी, कभी फेल हुए ही नहीं होंगे. सब लोग फेल होके ही ऊपर आए हैं. सो डेफिनेटली आई फेल कभी नहीं बोलना है. आई लर्न. इससे मैंने क्या सीखा? ये सीखा. आगे बढ़िए. सो और हमेशा हम बोलते हैं हे भगवान मुझे क्यों ये सब दुख. मुझे क्यों दुख नहीं, वाई मी नहीं, व्हाट कैन आई लर्न, मैं क्यों, तो उससे सीखिए कि व्हाट कैन आई लर्न, मैं क्या सीख सकता हूँ ये चीज के ऊपर. इससे क्या होगा कि हमें पॉजिटिविटी मिलेगी. जितना आप पूरे नेगेटिव वर्ड्स पढ़िए, सारे पॉजिटिव वर्ड्स पढ़िए, तो हमें पता चलेगा हम कहाँ कौन से पैनल के ऊपर जा रहे हैं.
So what is the message over here? Comparing positive and negative is it's not what happens to us, but how we think about it. ठीक है, अभी आप देखिए कि अगर आप प्लान करके जा रहे हो इंटरव्यू के लिए और आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो व्हाट पॉजिटिव थिंग यू विल हैव, कोई बता पाएगा मैसेज में? पहुंच ही नहीं पा रहे हो? Yes, sir. There is nothing good or bad in this world, but thinking makes it so. Yes, definitely, sir. इंटरव्यू हम देने जा रहे हैं, चलो हम लोग, कोई एंटरप्रेन्योर होगा, कोई बिजनेस पर्सन होगा, कोई टीचर होगा, कोई एजुकेटर होगा यहाँ पे, आई एम नॉट अवेयर हु ऑल आर ज्वाइनिंग हियर, बट मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं एक एजुकेटर हूँ, तो अगर मैं कहीं इंटरव्यू देने जा रही हूँ तो वहां मैं पहुंच ही नहीं पा रही हूँ, तो क्या पॉजिटिव थिंक हो सकता है? वेंकटेश प्रसाद सर, अगर आप बता सको, अक्षय सर प्लीज पार्टिसिपेट। कोई ऐसा बता सकता है कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं और पहुंच ही नहीं पा रहे, तो व्हाट वुड बी द पॉजिटिव थिंग, थॉट ऑन इट? आई विल बी वेटिंग। सम्राट सर, मोटोरोला जी, मंजू जी, मिनी ठीक जी। है, explore options. What are the options? Can you contact the people who are going to interview you and tell Yes. them what is the difficulty you are facing? Can the interview be rescheduled to another day till such time you reach that place? So Yes. explore options. Yes, definitely explore options, see what you can do the best in that time, because हमारे हाथ में सिचुएशन है ही नहीं, तो हम क्या कर पाएंगे उसके लिए? Yes, maybe I'll give more time to learn. Okay, right? And आपने वो इंटरव्यू मिस भी कर दिया तो वो लास्ट जॉब नहीं था इंटरव्यू के लिए। आई विल ऑलवेज थिंक दैट वे, चलो चला गया कोई बात नहीं, मेरे नसीब में नहीं था, बट आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम कि मैं और 2 घंटा जल्दी निकलूं। प्रोबेबली आई विल थिंक दैट वे, राइट? सो लेट्स मूव अहेड, प्लीज पार्टिसिपेट एवरीवन। ऐसा लग रहा है सिर्फ मैं और वेंकटेश सर ही है रूम में। सो कॉमन थॉट ट्रैप्स, कॉमन थॉट्स होते हैं ये। वॉच आउट फॉर सेल्फ डाउट, रिप्लेस विथ सेल्फ बिलीव्स। ठीक है, सेल्फ डाउट्स मत कीजिए, सेल्फ बिलीफ रखिए। कंपेयर मत कीजिए किसी के साथ कि मैं नहीं पहुंच पाया या मैं नहीं कर पा रही हूं तो ये क्यों कर पा रही है। इट्स ओके, बी हैप्पी दैट वो कर रही है, मैं भी शायद ऐसा कर सकूं या मैं इससे बेटर कर सकूं, राइट? योर सेल्फ विद अदर्स, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। फियर ऑफ फेलियर, काफी बार ऐसा होता है कि अगर हम नहीं कर पाए तो, क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर आपके पास सब कुछ है, डिजिटली आप साउंड हो, आपका टॉपिक आप एकदम प्रॉपरली आपने गो थ्रू किया है, तो डर किस बात का, राइट? आपको सपोर्ट करने के लिए लोग हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले सको कि एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटीज अक्षय सर ने जो ये सब अरेंज किया है, तो उसमें अगर हम सोचते कि भाई नहीं यार हम नहीं दे पाएंगे, तो क्या होता है? लॉस किसका है? हमारा है। हमें कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, हमें चांस नहीं मिल रहा है प्रेजेंट करने का। नो वन हियर, एटलीस्ट जो 11 पीपल है, दे विल नॉट नो हु इज उन्नति देसाई एंड व्हाट शी इज डूइंग। एटलीस्ट आउट ऑफ होल वर्ल्ड 11 पीपल आर नोइंग मी दैट Unnati Desai is a good orator. Unnati Desai can present a good mental health session. That is what the positive thing I'll be taking today. Okay, fear of failure should not have, overthinking करना ही नहीं है। overthinking is a positive also and negative also, but yes, positive हो तो उसमें growth मिलता है, negative हो तो वो स्ट्रेस में चला जाता है, तो बेटर ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो रिप्लेस क्या करना है उससे? सेल्फ बिलीफ अच्छा रखो, ग्रैटिट्यूड में बिलीव करो। ग्रैटिट्यूड इज द ऑलवेज बिग थिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ बैठे हो, देर आर मेनी पीपल हु डोंट गेट चांस। हम जो यहाँ 10 लोग 11 लोग बैठे हैं, हमारे अलावा कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कितने सारे लोग होंगे, लेकिन दे कुड नॉट मेंशन देमसेल्फ, दे कुड नॉट कम अहेड एंड से यस आई कैन डू इट, देन वी आर द बेस्ट वंस। एक्शन, टेक एक्शन, जैसे हमने एक्शन लिया। Why I'm taking the example? Because I'm not knowing about anybody, so I'm just taking a simple example of excellent opportunities, what we are getting it over here. Learning mindset always रखिए, take the criticism, give the feedbacks properly, be positive, so उससे हमारा growth ही होगा। Don't fall in the traps of thoughts. सो हैबिट्स क्या होनी चाहिए हमारी फॉर पॉजिटिव माइंडसेट? सो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, राइट 3 गुड थिंग्स डेली, यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक्स। पॉजिटिव सेल्फ टॉक्स होना बहुत जरूरी है अपने लिए। अगर आप खुद को ही हेल्प नहीं कर पाओगे तो आगे शायद हम किसी को हेल्प नहीं कर पाएंगे। इंस्टेड ऑफ आई एम नॉट गुड इनफ, से आई एम इंप्रूविंग एवरी डे। फोकस ऑन सॉल्यूशंस, आस्क व्हाट आई कैन डू नेक्स्ट, राइट? ओके, सो हियर इज द सिचुएशन 1। मैंने एक मिस्टेक की है, ये सबको पार्टिसिपेट करना है। आई होप अक्षय सर, वेंकटेश प्रसाद सर और बाकी के लोग भी पार्टिसिपेट करें। सिचुएशन 1 है, आई मेड अ मिस्टेक इन माई वर्क। नेगेटिव थॉट, आई एम टेरिबल। पॉजिटिव थॉट, आई लर्न समथिंग वैल्यूएबल।
Situation 2, I didn't get selected. Negative thought, I am failure. Positive thought, this is an opportunity to improve and try again. तो solution 1 में हम क्या सोचेंगे? Being an individual, आप क्या सोचोगे? I made a mistake. हम लोग ने काम पे है और वहां पे एक मिस्टेक की है. So what you will do? Being a person, being Unnati Desai, what I'll do is I accept the mistake. Because I am a teacher, I am a trainer, I cannot be a person saying lie or hiding the things. So leadership is action, not position. Okay. Thank you, sir. So anybody, if you make a mistake, what you will do? And the second question is, I didn't get selected. ऐसा हम नहीं select हो रहे हैं तो हम क्या सोचेंगे? Anybody in the room can give the answer? Okay. So situation 2 में I didn't get selected में मैं ये सोचूंगी, their loss. They did not select me. It's their loss. They didn't get my expertise. उनका लॉस है बिकॉज उन्होंने जाना ही नहीं कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है. ओके. सो डेली माइंडसेट हमें क्या रखना चाहिए? उसका फॉर्मूला है व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर. ऑलवेज बी ग्रेटफुल. व्हाट इज वन थिंग आई कैन इंप्रूव टुडे. आज मैं क्या इंप्रूव कर सकती हूँ जो मैं कल नहीं कर पाई. एंड व्हाट इज वन थॉट, वन पॉजिटिव एक्शन आई विल टेक. राइट. सो व्हाट पॉजिटिव, वन पॉजिटिव एक्शन आई विल टेक टुडे. सो दिस 3 फॉर्मूलाज भी अगर हम काम करें ना, वी विल अचीव लॉट ऑफ सक्सेस इन लाइफ एंड वी कैन हेल्प लॉट मेनी पीपल अराउंड. अगर आप इसके ऊपर काम करते हो, ऑटोमेटिकली आपके आजू बाजू में जो लोग हैं वो पॉजिटिव होने लगेंगे. इफ यू अट्रैक्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव विल कम. इफ यू अट्रैक्ट नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव विल कम. सो टेक अवे वुड बी, रिमेंबर, थॉट्स बिकम एक्शंस, action becomes habits and habits shape your future. So now it's in your hands कि आपको क्या करना है. आपका फ्यूचर शेप करना है, उसको डिजाइन अच्छे से आपके हिसाब से करना है या फिर उसको रुइन करना है. It depends on you. So what is the final thought? A positive mindset doesn't mean ignoring challenges. It means believing you can overcome them. So I hope कि आपने जो भी सुना और जो भी समझा अब तक आप कुछ पॉजिटिव लेकर जाओगे. इफ पॉसिबल यू कैन राइट वन पॉजिटिव थिंग यू आर टेकिंग अप टुडे फ्रॉम माय सेशन व्हिच आई हैव प्रेजेंटेड, एंड फ्रॉम हियर you will always follow that positive thing. I would love to know that how will you and what you have taken from my session. One positive thought. मैडम मैं बोलूं क्या? Yes sir, please. मेरे एक दोस्त है कॉलेज में, तो उनकी 2 लाइनें बहुत अच्छी लगती है मेरे को, कभी भी मैं कोट करते रहता हूँ. यह न सोचो कल क्या होगा, यह न सोचो कल क्या होगा, जो कुछ होगा अच्छा होगा. Very good. So nice. So कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत रखो. This is what we know about Gita. Right? So if you feel that the session was good, you can, mention yourself what thoughts you are taking it away and what positive things you would be doing it. And sir, मेरे पास टाइम है या टाइम खत्म हो गया? अक्षय सर. You can continue 2 minutes. Yeah, I have a story for all of you. There were 2 people appointed in a village, and the company was of a shoe company जो shoes बेचती थी. So one employee went and he tried level best to sell all the shoes, but he could not sell anything. And he came back and said no one was wearing shoes over there. The second employee went and sold all the shoes, whatever he had, and whatever he had his target that day. So he came and he said, I sold all the shoes because no one was wearing shoes there. So what is the difference between both of the words? Venkatesh sir, only you and me are participating, so let us have the debate on this. मैडम माइंडसेट. Yes, mindset. वो जो इंसान था जो फर्स्ट वाला, वो ये लेकर गया कि यहाँ तो कोई शूज पहनता ही नहीं है, मैं क्या बेचूंगा, कैसे बेचूंगा. एंड द अदर वन डिडंट थिंक ऑफ एनीथिंग एंड जस्ट थॉट मैं सब बेच के ही आऊंगा, और ही वाज एंजॉयिंग सेलिंग ऑल द थिंग्स. और जो फर्स्ट वन था, ही वाज टेकिंग लॉट ऑफ बैगेज इन हिज हेड. सो सोचो मत, करो, जस्ट गेट इनटू इट. जैसे आज हम लोग आए, जस्ट गेट इनटू इट. Right? So thank you so much. Concluding myself, Unnati Desai from Surat, Gujarat. And thank you, Akshay sir. Thank you. Excellent opportunities for listening to me. Thank you, Venkatesh sir, for participating. Kusum ji for participating. Thank you so much. Hello, Unnati ji. I'm so sorry. I have a very bad throat.
I really wanted to participate in this presentation. Yeah. Due to this bad health, I'm not able to, but Yeah. it was really a wonderful session. We Thank have you. learned a lot. And I would like to say that every coin has two sides, positive and negative. If we learn to, अब negative को भी कोशिश करिए, उसमें से भी कुछ positive मिलेगा ही मिलेगा. Right. We Right. will Definitely. definitely get it. Otherwise, Definitely. challenges तो हैं. Everybody has to face it. Without challenges, no life. तो फिर Yes, ठीक है, स्टैचूज बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन challenges आएंगे and have to accept them and overcome. It was Right. really a wonderful session. We have learned a lot. Thank you so much. Thank you. Thank you, Kusuम ji. Thank you. Take care of उन्नति yourself. Yeah. उन्नति जी ने हमारे उन्नति पे शिकामोर्तब कर दिया है. Thank you. Thank you so much. Exactly. Thank you Hello. very much, Yes. Miss Okay, Unnati I Desai. also want to say something, sir. Wait. I also want That was truly an inspiring and meaningful presentation. Your thoughts have reminded us that positivity is not about ignoring life's difficulties. It is about developing the courage to face those difficulties with confidence and determination. Your presentation highlighted several important lessons. You reminded us that every challenge carries an opportunities, every setback contains a lesson, every mistake can become a source of growth, and every individual possesses the ability to develop a stronger mindset. Friends, one powerful message from today's presentations is that our thoughts influence our actions influence our habits influence our future. Therefore, positive thinking is not simply a motivational concept, it is a practical life skills. It is something we can develop every day through gratitude, through self-awareness, through healthy relationships, through continuous learning, and through believing in ourselves. Dear participants, I would like to encourage each one of you to take at least one positive lesson from this presentation. Ask yourself, what negative thoughts can I let go of? What positive habit can I start? How can I become kinder to myself? How can I become more hopeful about my future? Remember, progress is more important than perfection. Smaller positive changes create a big transformation over time. A positive life is built one positive decision at a time. Before we move to our next presentation, I would like to leave you with a few thoughts. Your circumstances do not define you. Your failure do not define you. Your past does not define you. Your attitude toward growth define you. And your mindset shape the direction of your future. Never underestimate the power of hope. Never underestimate the power of encouragement. And never underestimate the power of positive mindset. Once again, thank you, Ms. Unti Desai, for your wonderful presentation and valuable contribution to today's workshop. Ladies and gentlemen, one more round of applause, please. And now, with the same enthusiasm and spirit of learning, let's move forward to our next presentation. Ms. Manju from Chhattisgarh, topic is mental health anxiety. Manju ji, Yes, sir. Good evening. you're most welcome. So, yes, मैं मंजू शैलेश हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और मैं स्पेशल एजुकेटर के रूप में काम कर रही हूँ, और इसके आगे और क्या बताना है। आप सबको नमस्कार है। ये छोटा सा प्रेजेंटेशन है मेरा। सॉरी।
मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग की जो इसकी रिसोर्सेस और अचीविंग, इसको अचीव कैसे किया जाए, इसके बारे में मैं छोटे से जानकारी देना चाहूँगी। और इससे इन सबसे पहले मैं अक्षय सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो मुझे पहली बार ये प्रेजेंटेशन देने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी दिए हैं। जो ग्रो टुगेदर का जो इनका जो लाइन है उसको ये साबित करता है। थैंक्स टू हिम लॉट, राइट। और बाकी सब जो भी है उन सब के लिए मेरा नमस्कार है। छोटा सा प्रेजेंटेशन है, आई थिंक मैं ठीक से बोल पा रही हूँ या नहीं बोल पा रही हूँ, आप इसके लिए मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा है। तो ये मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, पहला तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स रेज कहाँ से होते हैं, इसके सोर्सेस कहाँ पे हैं? हेलो हेलो, Yes, yes, you can continue. ओके Yes, ma'am, is clear. ओके, थैंक यू मैम। तो इसको किस प्रकार हम डिफाइन करेंगे? हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो कहाँ से उपजा है, उसका मतलब क्या है। सो ये एक चीज है जो मेंटल हेल्थ encompasses emotional, psychological and social well-being affect how we think, feel and behave। और भी किस तरीके से हमारे ऊपर मैटर करता है, क्योंकि ये हेल्थ हमको सपोर्ट करता है कि किस तरीके से हम सिचुएशन को रेजिलियंस कर सकें, उसकी प्रोडक्टिविटी पे कैसा ध्यान दिया जा सके, और अपनी एबिलिटी जो स्ट्रेस और अच्छे रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए ये चीज जरूरी है। जो हमारे साइकोलॉजिकल जो पार्ट्स है, 3 चीजों से बढ़ता है हमारा मेंटल हेल्थ जो रिसोर्स कहाँ से आता है। तो पहला चीज जो है हमारा बायोलॉजिकल है, जो हम फिजिकली जो भी महसूस करते हैं, जो भी हमारे डिसऑर्डर्स हैं, जो भी हैं, ये पहला सोर्सेस है जिससे कि हम मेंटल हेल्थ से पीड़ित हो सकते हैं। दूसरा हमारा कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल पॉइंट है, जैसे हम सोचते हैं, हमारी दिमागी सोच के जरिए ये कैसा होता है, वो हमारा पर्सनल होता है। और दूसरा सोशल वेलबींग एंड सोशल एंड कल्चरल वेलबींग, हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, दैट ऑल्सो इम्पैक्ट अवर थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग नेचर, राइट। ये 3 रिसोर्सेज को जानना जरूरी है। आखिर मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम राइज कैसे हुआ, इसका सोर्सेस कहाँ से आया, क्या वो फिजिकली कोई परेशानी है, या साइकोलॉजिकल कोई इफेक्ट है, या हमारे सराउंडिंग से एनवायरनमेंट के थ्रू ये आ रहा है। सो ये रीजन को फाइंड करना सबसे पहला बहुत सकते हैं। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो 2 प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, पहला इंटरनल फैक्टर और दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर जो होते हैं वो किस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करता है, पहला है पर्सनल ट्रेट, जेनेटिक, कॉपिंग स्किल, प्ले की रोल्स इन शेपिंग एंड इंडिविजुअल्स मेंटल हेल्थ स्टेटस। पर्सनल ट्रेट हम सेल्फ के अंदर जो देखते हैं, हमारे सेल्फ के अंदर जो इनबिल्ट होके आता है, जो जेनेटिक तौर पे रहता है। नाउ नेक्स्ट इज वी आर लिविंग इन फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इन सबके साथ रहते हैं, तो इनसे भी हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। ये इंटरनल फैक्टर्स है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स तो लाइफ के इवेंट्स क्या हमारे साथ हुआ, देन सोशल सपोर्ट से हमारा क्या क्या इन्फ्लुएंस हुआ, और जो बेहतरीन तरीके से होता है, और लाइव एग्जांपल तो सर बैठे ही हुए हैं जिससे कि हमको सपोर्ट मिला है और हम आगे बढ़ सकते हैं, देन वर्किंग कंडीशन, देन कल्चरल बैकग्राउंड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट है साइंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हेल्थ। आप किसी को मेंटल हेल्थ या वेल बीइंग से हम परे पा रहे हैं तो वो क्या वजह से है? ये इंडिकेट कैसे करेगा कि ये आप गुड मेंटल हेल्थ में है या वार्निंग स्टेज में है। तो ये वार्निंग साइंस क्या क्या है मेंटल हेल्थ का, और गुड मेंटल हेल्थ के लिए क्या क्या साइंस है। तो गुड मेंटल हेल्थ आपका रहता है जब आप फीलिंग बैलेंस्ड, कॉन्फिडेंट एंड एबल टू मैनेज स्ट्रेस, मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप। ये डेफिनेटली आपको मिलेगा, आप डेफिनेटली पाएंगे। और वार्निंग साइन मेंटल हेल्थ का ये है कि परसिस्टेंस ऑफ सैडनेस, आप हर समय दुखी महसूस होने का एक थिंकिंग आ जाती है या इफेक्ट ये रहता है आपके पास। दूसरा एंजाइटी फील करेंगे, और कोई भी चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं रहेंगे, आप विड्रॉ करेंगे। और चेंज इन बिहेवियर, जो नॉर्मल आपका जो रेगुलर डेली रूटीन का जो वर्किंग है जैसा बिहेवियर, आप उसको चेंज होते हैं। तो ये वार्निंग साइन है जिससे आपको पता चलता है सब मेंटल डिस्टर्बेंस है दैट। बट इंडिकेटर्स ऑफ गुड मेंटल हेल्थ तो आप ये सबकी ऑपोजिट रहेंगे। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी। किस तरीके से हमारी सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी हमें इम्पैक्ट करती है। पहला है रोल ऑफ सोशल कनेक्शन। सोशल कनेक्शन में a supportive relationship fosters a sense of belonging and reduce feeling of loneliness and isolation. This is the biggest problem of today's world, that don't isolate yourself from social, because हर एक उंगली आप जानते हो जैसे कि बराबर नहीं होती है। Some everybody have different in nature and we have to cope up with that. We have to deal with that, right? So ऐसा नहीं है कि एक पर्सन नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव
या नहीं होगा, दूसरा होगा, मगर हमको सोशल लाइफ में रह के हम उन्हें भी उस चेंजेस को लाने की कोशिश करें, इस लोनलीनेस को हटाना, आइसोलेशन को हटाना और उनको महसूस कराना है कि आप इस संसार में अकेले नहीं है, वे आर वर्किंग टुगेदर फॉर ऑल ईच अदर, राइट। सो डिजिटल मीडिया किस प्रकार हमें इफेक्ट कर रही है? डिजिटल मीडिया इस प्रकार इफेक्ट कर रही है कि एक्सेसिव या नेगेटिव यूज ऑफ मीडिया ही हमें स्ट्रेस, एंजाइटी या डिस्टर्ब फील को डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन आप इसका ऑपोजिट भी दे सकते हैं कि हमें डिजिटल मीडिया से जिस प्रकार पॉजिटिव चीजें मिल रही है उससे डबल क्वांटिटी में शायद नेगेटिव मिल रही है, बट दैट इज डिपेंड अपॉन अवर सिलेक्शन कि हम क्या सेलेक्ट करते हैं, राइट। तो हमारे सिलेक्शंस को लेने के लिए ही हमें थॉट्स को जनरेट करने पड़ते हैं कि वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। नेक्स्ट है बिल्डिंग हेल्दी हैबिट्स एंड रूटीन। जैसे उन्नति मैडम ने बोला, मगर मैं उस समय ड्राइव कर रही थी तो मैं उनके बारे में कुछ बोल नहीं पाएगी, बहुत अच्छा बताया उन्होंने कि हैबिट्स बेस्ड मतलब आपकी डेस्टिनी चेंज कर देता है वो। 100% एक्यूरेसी के साथ उन्होंने बोला है कि ये उन्होंने भी इससे पहले भी जो भी बोला, लेकिन उस पॉइंट को फिर से लाए, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि हैबिट्स विल चेंज योर डेस्टिनी। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? फिजिकली हो सकता है, दूसरा बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस न्यूट्रिशन, राइट, क्योंकि हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, बाहर टहलना हो गया, घूमना हो गया, हमारी बॉडी के लिए छोटे मोटे एक्सरसाइज, अरे हार्ड एंड फास्ट थोड़े बहुत भी लेते हैं तो बूस्ट मूड ये क्या करता है, आपके मूड को बूस्ट करता है, रेड्यूसेस। आप अपनी जगह पे खड़े होकर जंप कर सकते हो या दो चार को मिला के आप हंस सकते हो, दैट मीन तो कुछ जोक करनी है, समथिंग इज देयर टू लाफ एंड समथिंग इज देयर टू शेयर, समथिंग इज देयर टू सोशली, चलो आओ यार थोड़ा घुमाएं, राइट। इट डेफिनेटली इम्प्रूव्स देयर ओवरऑल मेंटल हेल्थ, राइट। और वैसे ही हमारा खाना भी होता है, तो खाना भी हमें विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन, जो आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जान रहे हैं, इससे हमारे ब्रेन को सपोर्ट मिलता है, हमारी एनर्जी लेवल बनती है और इमोशनल स्टेबिलिटी भी रहता है, राइट। अब इमोशनल सपोर्ट एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो मिलना है हमको, ये किसके पास से मिलता है? बहुत लोग ये हेजिटेट करते हैं, हमारे क्लोजेस्ट फ्रेंड मतलब नियर एंड डियर हमारे से शेयर नहीं करते, बट दे नीड टू टॉक टू समबडी, दे ऐसे लोगों से बात करना चाहते हैं जहाँ पे हमारी बात शेयर हो। हम ऐसे पर्सनैलिटी से बात करना चाहते हैं जहाँ हमारी बातें शेयर ना हो, हमारी पर्सनल कुछ बातें हैं जिससे उसे एम्पैथी रख के, नॉट सिंपैथी, एम्पैथी रखते हुए हमें बात करना है, सोचना है, समझना है। तो ऐसे किस जगह से आप इस सपोर्ट को ले सकते हैं? तो अक्षर सर तो ऐसे ही ये सपोर्ट खोल रखे हैं, consulting the mental health professionals and can provide the guidance, therapy and appropriate treatment के लिए, seeking for professional help and resilience and coping skill के लिए आप डेवलप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डेवलपिंग रेजिलियंस स्किल, इस चीज से आप रेजिलियंस स्किल को, इसको रोकने के लिए आपके पास एक रेजिलियंस स्किल डेवलप होता है, कैसे आप चैलेंजेस को इफेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं, रिकवर हो सकते हो पर्टिकुलर चीज से, राइट। सोशल एंगेजमेंट एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, राइट, स्ट्रेंथनिंग सोशल नेटवर्क, आई बिलीव इन दिस, बहुत ही अच्छा होता है। एंड पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिटी एक्टिविटी, आप करिए, आप इन सब में पार्टिसिपेट करिए और आपको स्ट्रेंथ महसूस होगा और इसमें ये पता चलेगा कि आप अकेले ही नहीं हैं, कुछ समस्याओं का समाधान किसी के पास है नहीं, वो शायद आपके चलते या आप जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे मिलकर कम हो जाए, या फिर आपको ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो आप नहीं जानते हैं, उसे भी उजागर होगा कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। और यही नहीं, इससे सोशल नेटवर्क से हमारे इमोशनल सपोर्ट भी बढ़ते हैं, रेड्यूसेस द फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, राइट। आइसोलेशन होना बहुत बड़ा हमारे लिए, खुद के लिए बहुत बड़ा सजा है, तो ये सजा हम अपने आप को ना दें, आइसोलेशन में ना रहें, जहां तक हो सके हमारे पास में है तो थोड़े दूर चल के भी देखें, लेकिन इसको ले नेटवर्किंग को और ऐसे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें जहाँ पे आप दूसरों के लिए सपोर्ट बन के काम कर सकें, तो यू फील द मतलब आपको प्राइड फील होगा और इन सब जगहों पे काम करने से ये पता चलेगा कि हमारे पास जो मुश्किलें हैं उससे 10 गुना पार करने वाले मुश्किलों को बैठे हुए लोग हैं, तो वी कैन गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट पीपल एंड मे बी हमारे कुछ सॉल्यूशंस मिल सके जो हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये दो चीज आप प्लीज आप लोग जरूर इसको रखे रहें अपने साथ। अब इसको किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं? पहला तो आपका माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, जो आप रिलैक्सेशन काफी प्रोफेशनल्स लोग प्रोवाइड करते हैं और विजुअलाइजेशन भी देते हैं, रिलैक्सेशन, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस, ये बहुत बॉडी को रिलैक्स करता है। आप इसको एक बार आजमा के देखिए, जो भी प्रोफेशनल्स आपके नजदीक है, नियर डियर है,
तो आप ये रिलैक्सेशन एक बार लेके देखिए लाइफ में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यू फील लाइट, जो आपके बॉडी में हैवीनेस है वो कम होगा। और ब्रीदिंग टेक्निक्स है, टाइम मैनेजमेंट करिए, एंड आपकी कुछ हॉबीज हैं तो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेगा। थैंक यू, मेरे पास इतना ही था बोलने के लिए। आई डोंट नो वेदर इट इज गुड और बैड। Madam, excellent presentation. We enjoyed every minute of it. हेलो, यस सर, थैंक यू। Thank you very much, Miss Manju. यस सर। That was an extremely informative, meaningful, and thought-provoking presentation. You have helped us better understand the importance of mental health and the realities of anxiety. Your presentation reminded us that mental health deserves attention, care, and respect. It reminded us that seeking help is not a sign of weakness. It reminded us that emotional well-being is just as important as physical well-being. And most importantly, it reminded us that nobody should suffer in silence. Thank you for sharing such valuable knowledge with us. Friends, as we reflect on the presentation we have just heard, let us remind and remember few important messages. Mental health matters, self-care matters, rest matters, healthy relationship matters, asking for help matters, and supporting others matters. We often encourage others to stay strong, but sometimes strength means allowing ourselves to be valuable. Sometimes strength means admitting that we need support. Sometimes strength means taking a break. Sometimes strength means reaching out for professional help. And there is absolutely nothing wrong with that. Dear participants, today I encourage each one of you to make a simple commitment. Take care of your mental health with the same seriousness that you take care of your physical health. Make time of rest, make time for meaningful conversation, make time for self-reflections, make time for activities that bring joy and peace. And if someone around you is struggling, listen with compassion, support without judgment, encourage without criticism, because sometimes the greatest gift we can offer another human being is understanding. Before moving to our next presentation, I would like to share a thought. You do not have to carry every burden alone. You do not have to be strong every moment of every day. You do not have to pretend that everything is perfect. You are allowed to ask for help. You are allowed to rest. You are allowed to heal. And you are allowed to prioritize your well-being. Remember, healing is not weakness. Healing is strength. Growth is strength. Awareness is strength. And compassion is strength. Once again, thank you, Ms. Manju from Chhattisgarh, for your wonderful presentation and valuable contribution to today's workshop. Ladies and gentlemen, let's appreciate her efforts with another big round of applause. And now, with renewed awareness, with understanding, let's continue our journey of learning as we move to our next presentation. Thank you, Mrs. Manju. Thank you. Mr. Venkatesh Prasad, your topic is mental health and workplace well-being. You're most welcome in Excellent Opportunities Association. Bitwa, thank you very much. But I thank Excellent Opportunities for giving me this opportunity to present my views on mental health at the workplace and increasing productivity at the workplace. Now, I have to give some background of what happened at the workplace. I was with Bharat Petroleum for nearly 39 years. I retired in May 2017.
So in 2000, 2001 and 2002, we were the first company in Southeast Asia to introduce SAP. SAP is a German company which provides tools to any company to right from various types of modules are there which help the company to increase its profitability. तो जब ये SAP इम्प्लीमेंट हुआ तभी हमारा तो पूरा बैंड बज गया. बैंड कैसे बज गया कि मैं घर ऑफिस से 20 मिनट के अंतर पर ही रहता था. मैं सुबह 9:30 का ऑफिस था, शाम को 5 बजे तक. मगर SAP इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, अकाउंट्स में रहने की वजह से मेरे को जो है लेट नाइट बैठना पड़ता था. आई वॉज एन ऑफिसर देयर. तो ऑफिसर यानी हम तो क्या बोलते हैं ना, मराठी में वेट बिगार बोलते हैं, बॉन्डेड लेबर के तो से भी परे थे हम. तो ऐसी हालत थी. क्या था कि रात को 1:30-2 बजे मुझे मेरे कलीग को, क्लरिकल स्टाफ को थाना छोड़ना पड़ता था उनके घर. तभी उस जमाने में एक्सप्रेस वे, मेट्रो बिट्रो कुछ नहीं था. तो टैक्सी में उसको मैं बिठा के और बीच बीच में हमारे दोस्तों को कहीं कहीं छोड़ के फिर मैं आगे निकल जाता था थाना में, उनको छोड़ता था और वही टैक्सी लेके घर आता. तो सुबह 4 बज जाते थे. मैं चाल में रहता था. और चाल में कैसा है कि सुबह 4 बजे से लोग पानी पीने का, पानी भरने का जो है काम चालू करते हैं. और मकान 100 साल से जुना था चाल, इसके वजह से खटमल ने तो बहुत हमारा जिंदगी जो है परेशान कर दिया है. तो आप सोच सकते हैं कि मेरी क्या हालत थी. यानी मेरे को कभी कभी तो ऐसे लगता था कि यार कहीं भाग जाऊं तो अच्छा हो जाएगा. इतना स्ट्रेस लेवल था. घर में मेरे पिताजी बुजुर्ग थे जो तभी ही वॉज अराउंड 86 ईयर्स ओल्ड. हाँ, तो उन्होंने तो मेरे बीवी को बोला था, अरे इसको घर में ही मत ले. तो मैं बाहर बाहर खुर्ची में गैलरी में बैठ जाता था और सुबह 5 बजे फिर बीवी आस्ते से मेरे को जो है अंदर ले लेती थी. ऐसी मेरी हालत थी. तो इसके वजह से क्या हुआ कि एक तो नींद नहीं थी. इसके वजह से प्रोडक्टिविटी पे कहीं ना कहीं तो असर होता ही था. लगभग सचमुच ही होता था. मगर क्या है कि वी हैड टू पुश आवर सेल्व्स. अंग्रेजी में एक कहावत है, अ मैन्स रीच शुड एक्सीड हिज ग्रास्प, अदरवाइज व्हाट इज लाइफ फॉर. तो क्या है कि वी वर लिटरली पुश टू द वॉल बट वी रोज टू द ओकेजन. हम लोगों ने जो है पूरा हमारा 200% दिया. मगर मेरी एक ही थी सोच कि बाबा भाई इसमें से, भगवान को बोला भाई भाई हमको इसमें से जो है बेड़ा पार कर दो. तो मेरे को जो है 34वें साल में मेरे एक कलीग ने, हमारा महाराष्ट्रियन कलीग ने मेरे को प्रोत्साहित किया कि बोला वेंकटेश देख ऐसा है कि एक हीलिंग थेरेपी है बैच फ्लावर रेमेडीज करके, तू क्यों नहीं पढ़ लेता है. तो मैंने एक किताब खरीद ली, 2 किताब खरीद ली, 10 किताब खरीद ली और मैं पूरा घुस गया उसमें, हीलिंग थेरेपी में. और उसका परिणाम ऐसे हुआ कि 1999 में मेरे एक कलीग को लेबर पेन चालू हो गया. इट वॉज क्रिसमस ईव, 24/12/1999. सुबह 10:30 को उसको लेबर पेन चालू हो गया. मेरे पास रेस्क्यू रेमेडी करके एक दवाई है बैच फ्लावर रेमेडीज में. डॉक्टर एडवर्ड बैच, ये वेल्शमैन थे, वो बहुत अच्छे सर्जन थे. उनकी फ्लरिशिंग प्रैक्टिस चलती थी 1910 1920s में. मगर उन्होंने पूरा लात मारा अपने प्रैक्टिस पे और बोला कि निसर्ग में ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो उस फूल को मैं ले लूं तो मैं मेरे नकारात्मक भावनाओं से बाहर आ जाऊंगा. तो उन्होंने, वो एकदम संवेदनशील थे, तो उन्होंने क्या किया, 38 फूल जो है उन्होंने खोज के निकाला. 38 फूल, 38 नकारात्मक भावनाएं, जिससे हम हमारे दैनंदिन जीवन में उससे बाहर आ जा सकते हैं. तो उसकी प्रचिति जो है मेरे को उस दिन मिली जब भी मैंने रेस्क्यू रेमेडी के सहाय से उस मेरे कलीग को सेफ डिलीवरी हुआ. वो दोपहर के 3 बजे तक बहुत रो रही थी. 3 बजे रिपोर्ट आया प्लेसेंटा नॉर्मल. तभी वो हंसने लगी. उसको हमने मौसम्बी का जूस दिया. शाम को 5:30 बजे मैं घर जाके, घर बाजू में ही था मेरा, घर जाके जब मैं खाना खाने बैठा तभी मेरे को फोन आया कि माँ और बेटी सुखरूप है. तो ये हो गई बैच फ्लावर की बात. अभी क्या होता है कि ऐसे टाइम पे ऑफिस में जो है स्ट्रेस लेवल इतना हाई है, तो क्या करना है. तो फिर मैं क्या करता था, मैं 5वें मंजिल पे था और उसके ऊपर ही हमारी जो है टेरेस था. और ये बैलेट पियर में है. आप अगर कभी वीटी के पास बैलेट पियर जाओगे तो वहाँ पे जो माहौल है वो बहुत बढ़िया है. जुने पुराने 100 150 200 साल के ब्रिटिशों ने बांधे हुए बिल्डिंग है. और वहाँ का जो ये पौधे है, पौधे इतने सुंदर है, बोले वहाँ बोलते हैं ना कि दोनों बाजू से पौधे है और बीच में से रास्ता है. तो बरसात के दिनों में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत लुभावना रहता है. तो ऊपर जाके मैं जो है गच्ची में जाके जो है वो दूर जो है शिप दिखाई देते थे. डॉक है ना, डॉकयार्ड है वो साइड पे, पूरे डॉक्स है. तो वहां पे शिप को वगैरह देख लेता था. कभी कभार तो कौवे आते थे उधर, तो कौवे को बिस्कुट या कुछ न कुछ खाने की चीज जो है खिलाता था मैं. तो मजा आती थी. ऐसे फेंक लेता तो हवा में वो कौवा जो है उसको पकड़ के निकल जाता. तो दीज आर ऑल स्मॉल प्रैक्टिसेस विच हेल्प यू टू कम बैक टू योर नॉर्मल सेल्फ. और बैच फ्लावर, डॉक्टर एडवर्ड बैच ने क्या किया, ह्यूमैनिटी को 7 टाइप में उन्होंने डिवाइड किया.
those who live in fear, constant fear, फिर uncertainty, insufficient interest in present circumstances, loneliness. जैसे आपको मालूम होगा बहुत सारी कंट्रीज में, यूनाइटेड किंगडम में मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस है अभी। जैसे जो बूढ़े लोग हैं हमारे, अभी मैं आई हैव एंटर्ड 70, ओनली लास्ट वीक आई एंटर्ड 70। तो बूढ़े लोगों के लिए ऐसे लगता है कि बस जिंदगी में अभी और कुछ नहीं है, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, जो नकारात्मक भावना है ना, जो रील चलती रहती है। फिर उन्होंने कहा ओवर सेंसिटिविटी टू इन्फ्लुएंस एंड आइडियाज, डिस्पॉन्डेंसी और डिस्पैर, एंड ओवर केयर फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स। ऐसे उन्होंने ह्यूमैनिटी को बांट लिया और उनका जो है भारत के प्रति बहुत प्रेम था। तो उनके हील दायसेल्फ किताब में उन्होंने लिखा है कि माय मदर इंडिया, वो भारत कभी आए नहीं, मगर उन्होंने भारतीय परंपरा, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति और भारत का जो आध्यात्मिक ग्रंथ है उनका जो है उन्होंने अभ्यास किया था। और उन्होंने कहा मैंने ये जो ढूंढ के निकाला वो कोई बड़ी बात नहीं है, भारत के ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद 5000 साल पहले ढूंढ के निकाला। तो मेरा और एक अनुभव मैं शेयर करना चाहता हूँ कि द वर्स्ट थिंग टू हैपन टू चिल्ड्रन वाज द एप्स्टीन फाइल्स। तो वैसे एक मेरे को अनुभव है, 2013 अगस्त में आसाम में जो है राइट्स हुए और उस राइट्स में 70 बच्चे बाधित हुए। 10 से 15 साल के लड़कियां और लड़के, वो वुड कार्वर्स के बच्चे थे और उनके आंखों के सामने उनके माँ बाप की हत्या हुई। अभी आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या मानसिकता हुई होगी वो बच्चों की। तो वो एनजीओ वाला मेरा जो दोस्त है, वो भी, उसका नाम भी अक्षय है, तो अक्षय दौड़ के आया, बोला यार वेंकटेश क्या करूं, मालूम नहीं पड़ रहा है, उनको मराठी आती नहीं, हिंदी आती नहीं, अंग्रेजी नहीं, सिर्फ आसामीस आती है, वो बच्चे अवसाद में है, हाँ बहुत डिप्रेशन में है, क्या करूं मैं, कुछ तो बता यार। तो मैंने बोला यार देख अक्षय, डर मत, मैं आपको फ्लावर रेमेडीज कुछ लिख के दे देता हूँ, आप मार्केट से ले लो, बाकी भगवान पे छोड़ दो, वो देख लेगा। तो 3 महीने के बाद आया हंसते खेलते, बोला अभी वो बच्चे ठीक है। तो मैंने तो तुरंत उधर के उधर जो है भगवान को जो है मैंने साष्टांग प्रणिपात किया, बोला कि ये भगवान आपने तो पूरा चमत्कार कर दिया। और वो बच्चे इतने सुंदर थे कि उन्होंने मेरे को एक ब्यूटीफुली इंट्रिकेटली कार्व्ड वुडन ज्वेलरी बॉक्स मेरे को प्रेजेंट किया। और 14 फरवरी 2014 में अगर मेरे पिताजी जीवित होते तो उनकी 100 साल पूरी होती। तो मैंने वो शताब्दी वर्ष के लिए वो 20,000 का चेक दिया और बोला अक्षय यार ये वो बच्चों को उस दिन दे दे, आप कुछ भी खिला दो उनको। और जब भी वो बच्चों का फोटो उन्होंने भेजा तो सामुद्रिका शास्त्र के हिसाब से मेरे को लगा कि ये बच्चे जो भी फील्ड में रहेंगे वो अव्वल रहेंगे अपनी फील्ड में। तो ये हुआ बैच फ्लावर की। बैच फ्लावर की वजह से मैं क्या करता था कि मैं ऑलिव लेता था, ऑलिव, ओक, हॉर्नबीम और एल्म। जैसे आपको याद होगा जब ये निर्मला सीतारमन को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया तो टीवी चैनल जो बाइट्स के लिए इमीडिएट दौड़ते हैं ना, तो टीवी चैनल को बोलते वक्त उन्होंने बोला कि आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड। तो ओवरवेल्म जो अंग्रेजी शब्द है उसमें एल्म है, ELM, एल्म करके एक पुष्प औषधि में एक दवाई है। क्या होता है कि जैसे बड़े बड़े पद पे है, कोई स्कूल का प्रिंसिपल है या छोटे पद में भी हो, जैसे कोई एक बैंक में क्लर्क है और उसके राइट साइड में एक औरत बैठती है, वो जो है 8th मंथ प्रेग्नेंट है, वो जो है और 1 हफ्ते में जाने वाली है, वो 1 साल नहीं आएगी। हाँ, लेफ्ट साइड में जो औरत बैठी है उसकी सासू माँ का जो है बड़ा ऑपरेशन हुआ, वो घर में गिर गई, तो वो एक 3-4 महीने वो नहीं आने वाली है। तो बॉस उसको बुलाता है, ब्रांच मैनेजर, देख सतीश देख ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं आपको मदद करने की कोशिश करूंगा, इन ब्रैकेट्स कोशिश, मगर मदद की अपेक्षा मत करना, तेरे को 13 टेबल के अलावा ये 2 टेबल भी तेरे को हैंडल करना पड़ेगा। तो यू कैन इमेजिन द स्ट्रेस दैट गाय विल बी अंडर गोइंग। तो ऐसे सिचुएशन में केपेबल पीपल इफ दे टेक एल्म फ्लावर इसेंस थ्रू वाटर, ये जो है 38 फूले हैं और 38 नकारात्मक भावनाएं हैं। अभी वो 38 में एक जो है वो रॉक वाटर है, यानी पाषाण जल बोलते हैं, पाषाण से जो जल आता है, तो वो भी जो है वो लेते हैं तो आपकी जो नकारात्मक सोच है उसमें से आप बाहर आ सकते हो। हर फूल जो है एक नकारात्मक सोच के लिए रखा हुआ है। जैसे अभी ऑलिव है, ऑलिव जैसे हमारे फैमिली कैरर्स है। जैसे मेरी लड़की है, अभी 35 साल पूरे हो गए उसके, अभी एक 10-12 दिन से वो रिहैब में है और वो पेशेंट विद बाइपोलर इलनेस है, टाइप 1। और उसको जो है 18 साल से हमारा प्रवास है उसके साथ, कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर के वजह से बहुत टैलेंटेड है, वो पब्लिश्ड ऑथर है अंग्रेजी में, उसकी किताब हमने पब्लिश की है, मैंने 7 लाख खर्च किए। धन प्राप्ति कुछ हुई नहीं है, वो बात अलग है। रनिंग इन सर्कल्स, मीटिंग एंड मेकिंग एंड्स मीट बाय ममता प्रसाद। शी इज एब्स्ट्रैक्ट पेंटर, शी इज अ फोटोग्राफर, शी इज वी हैव पब्लिश्ड हर पोइट्री एंड अ शॉर्ट स्टोरी।
वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। मैं खुद इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, मगर मैं उसके पैरों तले नहीं बैठ सकता हूँ। हिंदी भी बहुत सुंदर, हिंदी में कविताएं, हिंदी बहुत अच्छी लिखती है वो। जब ये 10वीं में थी, आईसीएसई की स्टूडेंट, उसको 100 में से 95 मार्क थे। हिंदी की टीचर उससे बात नहीं किया कि आपने 5 मार्क नहीं लाए, इसके लिए मैं तेरे से बात नहीं करूंगी। ऐसे भी होता है क्या? टीचर है, कुछ तो अनुकंपा, कुछ तो कंपैशन बताना चाहिए। ऐसे बच्चों को, जो बच्चा प्रेम से मिलने को आया है, बताने आया है कि मैडम इतने मार्क मिले, और आप उनको बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, तू बात मत कर मेरे से, तो ठीक है, हर एक की मानसिकता रहती है। तो मेरे को क्या कहना था कि ये जो पुष्पा औषधि है, ये फैमिली कैरियर्स के लिए बहुत अच्छा है, मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर किसी को मेंटल डिसऑर्डर है तो उनको एलोपैथी मेडिसिन लेना अनिवार्य है। ये पुष्पा औषधि मदद करेंगी या नहीं करेंगी वो बात अलग है, मगर होम्योपैथी भी मदद करती है। दीज आर जस्ट एडजुवेंट्स, मगर दे कैनॉट रिप्लेस एलोपैथी ट्रीटमेंट। हाँ हाँ, ईसीटी देना है तो ईसीटी भी देना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही है, फैमिली कैरर्स को, जिनके घर में बच्चा या बच्ची या पत्नी होगा, पिता होगा, पति होगा, जो भी है, वो मेंटल पेशेंट है विथ सीवियर मेंटल इलनेस, उनको पीयर सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना है। और साइको एजुकेशन जो है वो सतत, यानी सतत जो है लेना है उनको, ताकि वो उस जोन में रहे और उनको जो जानकारी है वो अच्छी तरह से मालूम पड़े। अभी जैसे नई जानकारी ऐसे है कि कोई एक आध केस क्रैक नहीं हो पाया, तो साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं, अभी डीएनए टेस्टिंग करते हैं। जैसे कोविड के टाइम में हम लोग जो है सबका जो है स्वैब, कॉटन स्वैब मुंह में डालते थे और फिर उसका टेस्टिंग करते थे। वैसे ही ये पेशेंट विद सीवियर मेंटल इलनेस का लेफ्ट साइड में वो स्वैब को डालते हैं, उसको 10 बार घुमाते हैं, फिर राइट साइड में स्वैब को घुमाते डालते हैं, उसको 10 बार घुमाते हैं, और वो जो है वो टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। एजेंसी जो है वो टेस्टिंग करके फिर डॉक्टर को एक रिपोर्ट देती है कि कौन सी दवाइयाँ उस पेशेंट के लिए अच्छे है और कौन से दवाइयाँ की वजह से जो है प्रॉब्लम और बढ़ सकता है। जैसे क्या होता है ना, आइट्रोजेनिक इफेक्ट बोलते हैं, यानी ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज या डॉक्टर इंड्यूस्ड डिजीज। अभी जैसे लेडीज के बारे में क्या होता है कि जब ये दवाइयाँ देते हैं उनको, तो इनको एक तो पीरियड्स का प्रॉब्लम हो जाता है, मोटापा बहुत बढ़ जाता है, और हेयर लॉस होता है, छवि जो है उनकी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये बाइपोलर वालों का क्या होता है, लो सेल्फ एस्टीम या विजन्स ऑफ ग्रैंडियर। जैसे अभी किसी ने बताया, अगर वो मेरी लड़की बोलने लगी कि नासा के रॉकेट, वो बोलती थी नासा के रॉकेट्स तो मैंने ही इलॉन मस्क को बताया और इलॉन मस्क ने छोड़ा, ऐसे वैसे बड़े बार नहीं लगता है। तो अपने को मालूम है कि ये तो इनका डेलिन है और डेलिंक्वेंसी है। तो मेरा लेक्चर जो है मैं खत्म करता हूँ इधर, ताकि और दूसरे लोगों को भी बोलने का अवधि मिले। Thank you very much. God bless you guys for giving me a patient hearing. And I once again thank Excellent Opportunities for giving me this opportunity to speak and let know what is happening in the life of a family carer with a severe mental patient. Thank you so much. थैंक यू सो मच वेंकटेश सर। आपके एक्सपीरियंसेस से हमें बहुत कुछ लर्न करने को मिला। आपने अपना टोटल एक्सपीरियंस इतने शॉर्ट उस वक्त में एक्सप्लेन किया। यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड ऑन करूंगी कि लाइक योर डॉटर्स टीचर व्हेन शी सेड कि 5 मार्क्स लेस। हेलो, हाँ जी, 5 मार्क्स लेस, शी गॉट 95% हाँ जी, हाँ and जी, 5 मार्क्स लेस आउट ऑफ 100। हाँ जी, तो शी लुक फॉर 5 मार्क्स, उन्होंने वो नेगेटिव 5 मार्क्स देखे, 95 जो उनकी अचीवमेंट थी वो नहीं देखी। बराबर। इतना वंडरफुल उनका वो रिजल्ट था इन हिंदी, गेटिंग 95। तो शी कुड हैव एनकरेज्ड। मैं ये नहीं कह रही कि सच टीचर बात है, गलत है, टीचर की अपनी फीलिंग्स होंगी कुछ, सच बात है, क्यों? लेकिन अगर उस टाइम उस बच्चे को ये कहा गया होता कि मैं ये 95 देख रही हूँ, सच बात है। यू यू आर गेटिंग 95 एंड यू कैन गेट मोर देन दिस, यू कैन। तो उसने वंडरफुल, ये वर्ड जो है, वंडरफुल तरीके से काम किया होता उसमें, बहुत इम्पैक्ट रहना था थ्रू आउट लाइफ। सच बात है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी लाइफ को, सॉरी, हमारी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करती हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा अगर ध्यान में रखी जाएं सबको। मैं भी एक टीचर थी और मुझे भी ये लगता था, किसी ने मुझे कहा था कि ये फर्स्ट टाइम आपका रिजल्ट खराब है। मैंने कहा मैं तो वो देख रही हूँ कि जितने बच्चों ने अचीव किया है, सच बात है। मैं तो उनकी अचीवमेंट देख रही हूँ पॉजिटिव। अगर उनको देखूंगी तो आई एम 100% श्योर कि नेक्स्ट टाइम माई रिजल्ट विल बी मच बेटर। अगर मैं उनको देखूंगी कि दोस्त हु कुड नॉट गेट इट,
तो फिर मैं I cannot show the performance. It cannot be better next time. So see the positive thing we are getting. The negative will definitely improve. So thank you so much, sir. Thank you so much. थैंक यू, गॉड आपने ब्लेस यू। बहुत ही अच्छे तरीके, सिंपल और अच्छे तरीके से चीजें समझा। थैंक यू। जाते जाते सिर्फ एक ही किताब की मैं जिक्र करूंगा, जिनको जो है बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना है तो विजय नलवाला साहब करके है, उनका बाइपोलर इंडिया फाउंडेशन करके फाउंडेशन है। वो खुद पेशेंट विद सीवियर मेंटल इलनेस है। 25वें साल में डायग्नोस हुआ, 25वें साल में उनको वो व्याधि हुई, 40वें साल में डायग्नोस हुआ, अभी वो 63 साल के हैं। और उन्होंने एक सुंदर किताब लिखी है, बाइपोलर जर्नी फ्रॉम टॉर्मेंट टू फुलफिलमेंट। तो आप जो लोग मेंटल हेल्थ स्पेस में है और जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में जानना है तो कृपया ये किताब पढ़िए। इट्स अ बेस्ट सेलर। कुछ 300 रुपया है, ज्यादा कीमत नहीं है वो किताब की, बहुत बढ़िया किताब है। और इज आइकॉनिक फिगर। अभी ये संडे को उनको डोंबिवली में एक संस्था है, उनको फेलिसिटेट करने वाली है फॉर हिज अचीवमेंट्स इन द मेंटल हेल्थ स्पेस। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Mr. Venkatesh Prasad. That was an insightful, practical, and highly relevant presentation. Your presentation highlighted the important connection between mental health and professional success. You helped us understand that workplace well-being is not merely about productivity or performance. It is about creating an environment where individual feels respected, supported, motivated, and valued. You also reminded us that achieving professional goals should never come at the cost of our mental and emotional well-being. The strategies and perspectives you shared today will undoubtedly help participants manage stress more effectively and contribute to more positive workplace culture. Thank you for sharing your valuable knowledge and experiences with us, friends. As we reflect upon the important presentation, let's remember a healthy workplace begins with healthy individuals. When people feel supported, they perform better. When people respected, they contribute more effectively. When people feel psychologically safe, they are more creative, productive, and engaged. Mental well-being is not separate from professional success. Mental well-being is an essential part of professional success. Let's all strive to create workplace that promote understanding, collaboration, respect, inclusion, and emotional well-being. Once again, on behalf of all participants and organizers, I extend our sincere gratitude to Mr. Venkatesh Prasad for his valuable presentation. Thank you for enriching today's workshops with your knowledge, practical insights, and meaningful contribution. Ladies and gentlemen, please join me in giving Mr. Venkatesh Prasad another huge round of applause. And now, be renewed awareness about importance of workshops, well-being, and mental health. Let's continue with our next presenter. Next presenter, Ms. Priyanka Sen. Your topic is anxiety and stress management. You're most welcome in Excellent Opportunities Association. थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका शर्मा है और मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ। और मैं स्पेशल फील्ड में ही हूँ, मेंटल हेल्थ के उस पर काम करती हूँ बच्चों के साथ में मिलके। और मैं टोटली मेंटल हेल्थ के फील्ड में ही वर्केड हूँ इस समय। मैं आज मेंटल हेल्थ एंड डेली लाइफ स्टाइल के बारे में बताना चाहती हूँ आप लोगों को। जैसा कि सर ने अभी बोला था, एलोपैथिक लेना जरूरी है। इसके लिए एलोपैथिक के लिए एक वीडियो ऑन करना। वीडियो
हेलो, क्या मेरी आवाज? हेलो जी, जैसा कि सर ने अभी बोला था कि एलोपैथिक लेना जरूरी है, लेकिन नहीं, लाइफ स्टाइल में मेंटल हेल्थ के लिए कुछ अपने चेंजेस भी लाना जरूरी है। जैसे कि मेंटल हेल्थ ओनली कोई बीमारी नहीं है, एक इमोशनल, साइकोलॉजी और सोशल वेलबींग मतलब अच्छी चीजों को दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे सोचने समझने की शक्ति को बताता, तरीके को दर्शाता है। लाइफ स्टाइल में देखो, मेरे हिसाब से योगा बहुत जरूरी है लाइफ स्टाइल में चेंज, प्लस पहले एडिक्शन, क्योंकि 90% मोबाइल से एडिक्शन चालू शुरू हो गया है। एडिक्शन से गलत उस लाइन में लोग ज्यादा जा रहे हैं, इसलिए मेंटल हेल्थ का अब्यूज ज्यादा हो रहा है मेरे हिसाब से। बच्चे ऑटिज्म का, एडीएचडी का शिकार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? पेरेंट्सों की वजह से ही हो रहे हैं, है ना। कई बीमारियां, जैसे कि सर ने बताया, ये कौन सा डिसऑर्डर बताया था, हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, ये सारे डिसऑर्डर हैं। क्यों है? प्रेगनेंसी में अर्ली इंटरवेंशन में रेडी नहीं रहते पेरेंट्स। मोबाइल से इतना एडिक्शन हो गए हैं कि 90% महिलाएं, जेंट्स, लेडीज, मैन, वुमेन का होता है, 90% मोबाइल का यूज कर रही है। तो फिर एडिक्शन कहाँ, बताइए आप, कहाँ जाएगा? मिस यूज, किसी चीज का मिस यूज भी गलत होता है ना। जैसे अच्छी नींद लेना, अगर आप 7-8 घंटे की नींद लेंगे तो बिल्कुल मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ना ये तो। अच्छा आहार लेना, अपना खाना पीना अपना टाइम बे टाइम रहता है लोगों का। सुबह नहीं करना ब्रेकफास्ट, 12 बजे ब्रेकफास्ट करना, ये टाइमिंग नहीं है लोगों का। क्योंकि मैं मेरी जॉब है जो चैलेंजिंग जॉब है, जिसमें मैं काउंसलिंग भी करती हूँ लोगों की, तो कई सारे यही क्वेश्चन रहते हैं, और मैं उनकी लाइफ स्टाइल को देख के मैं खुद अपने आप को सोचती हूँ शायद मेरी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है इस मुकाबले। ठीक है, और लोगों को योगा मेडिटेशन के बारे में लोगों को तैयार करना, है ना। ज्यादा से ज्यादा ये है कि नेचुरली मतलब लोगों को कनेक्ट करना एलोपैथिक के बारे में। अदरवाइज में जाके मेंटल हेल्थ के लिए मेरे हिसाब से नेचुरली थोड़ा सा यूज करना चाहिए अपने आप में, थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए लाइफ स्टाइल में, है ना। थैंक यू सर, मुझे इतना बोलने के लिए, बस इतना ही काफी है मेरे लिए आज के लिए, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं। सर जी, क्या होता है कि पेरेंट्स जो है दे वांट इजी वे आउट। 1.5 साल के बच्चे के हाथ में भी मोबाइल दे देते हैं कि बच्चा तंग ना करे माँ बाप को। सर मैं स्पेशल फील्ड में ही हूँ, और मैं आपको क्या बताऊं, 50 का एक मतलब एज्ड व्यक्ति हो जाता है, और उसका आज मेंटल मतलब आप समझेंगे वो मेंटल है 10%। 10 साल के हिसाब से अब आप मान लीजिए वो काम कर रहा है, मतलब 10 साल का बच्चा काम करता है उस हिसाब से काम कर रहा है। क्या हुआ है उनको? उसको हीमोफीलिया है, तो क्लॉटिंग हो जाती है, इंजरी ऑटोमेटिक अंदर शरीर में हो जाती है, और बाय बर्थ वो मेंटल है थोड़ा सा। ओके ओके, माय गॉड माय गॉड। और इन बच्चों के साथ भूलने की बीमारी ज्यादा रहती है, ये अपने घर की एड्रेस भी याद नहीं रख पाते। अगर 2 मंथ मतलब 2 मंथ छुट्टी भी हो जाती है, इनकी लीव हो जाती है, हॉलीडे हो जाता है, तो उसके बाद ये जीरो होकर आते हैं। तो उनका स्पेशल मेमोरी भी अच्छा नहीं है क्या? स्पेशल मेमोरी ही तो बोल रही हूँ सर, जो मेंटल रिगार्डिंग मतलब मेंटल रिटार्डेशन, जो स्पेशल फील्ड में मेंटल रिटार्डेशन, आईडी बच्चा होता है, एचआई बच्चा होता है, बीआई बच्चा होता है, वो ब्लाइंड और हेयरिंग वाले होते हैं। लेकिन ये मेंटल, इनके साथ कुछ नहीं हो सकता। इनके साथ ये है कि सोशल में ला सकते हैं इनको, और इनकी हॉबी को पहचान कर इनके हिसाब से काम किया जाता है। स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, कोई डांसिंग में है, कोई म्यूजिक सीखना चाहता है, मतलब एक हॉबी को लेकर काम करना पड़ता है इनको। समझ गए, यानी उनको कस्टमाइज्ड एजुकेशन देना पड़ेगा। जी सर, मैंने भी सोचा था 1 साल तक कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बट मेरी जॉब इतनी चैलेंजिंग है कि अगर बच्चे को गुस्सा आ जाता है तो वो फेंक के कुछ भी मार सकता है। मैं 75% मेंटल रिटार्डेशन बच्चों को एक्सेप्ट कर रही हूँ अभी अपनी लाइफ में, और मेरे 33 एज है। ओके ऑटिस्टिक होंगे वो बच्चे, सारे ऑटिस्टिक होंगे ना? ऑटिस्टिक कोई बीमारी नहीं है, ऑटिस्टिक नहीं है, ऑटिस्टिक को नहीं जी, ये तो डिसऑर्डर है ना। नहीं, ऑटिस्टिक बोलना भी गलत है। करेक्ट वर्ड इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जी नहीं सर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के तो बच्चे काफी ठीक हो जाते हैं, उनको कमांड देकर ठीक हो सकता है, लेकिन मेंटल जो आईडी, उनका माइंड बाय बर्थ अगर होता है तो वो बच्चा मुश्किल है कि सही हो। बस ये है, वो सोशल बॉडी में मतलब सोशल व्यवहारिक तरीके से बाहर निकलना भी सीख जाए। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं सर, मैं काउंसलिंग का काम ज्यादा रहता है, बच्चों के साथ भी अट्रैक्शन है मेरा, बट काउंसलिंग में क्या है सर, पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते बच्चों को। नहीं, प्रॉब्लम ऐसा है ना कि वो उनको लायबिलिटी समझते हैं ना, जो प्रेम देना चाहिए, प्रेम के बजाय उनको उनके मन में एक दुश्मनी तैयार होती है बच्चों के बारे में कि ये क्या बच्चा पैदा किया मैंने, जी और नहीं, मेरे साथ ही ये क्यों ऐसा हुआ।
दुश्मनी तो नहीं, जैसे कि मैं बताऊं आपको, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बच्चे से क्या चाहते हैं वो, टोटली वो LLB MLB मतलब LLB कर ले, पोस्ट ग्रेजुएट कर ले, वो बच्चा 10th नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैंने अपनी फील्ड में कुछ बच्चों को 10th करा दिया है। Thank you. Wow, I salute you. I Sir, salute you. Thank you, sir. Thank you. And dear Mrs. Priyanka Sharma, thank you for your valuable presentation on mental health in daily Thank you. lifestyle. Your thoughts, insights, and efforts have created awareness about importance of maintaining mental well-being in our everyday lives. Your confidence, dedication, and willingness to share knowledge have inspired participants to adopt healthier habits and a more positive mindset. Every presentation is a step toward creating a mental healthier society. Keep learning, keep inspiring, and keep making a difference. This is not the end. It is the beginning of a great journey. Let's move forward together, connect with new opportunities, share more knowledge, and continue empowering lives through awareness and education. With appreciation, excellent opportunities association. Now we are going to move on our next presenters, Miss Priyanka Sen. Do you ready? Your presentation topic is anxiety and stress management. Priyanka Sen, please connect your presentation and start. Priyanka Sen, जी सर। प्लीज रिस्पॉन्स, आप अपना प्रेजेंटेशन कनेक्ट करिए, शेयर करिए। सर अब मैं इतना ही अपना बता सकती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा नॉट प्रियंका शर्मा, आई एम प्रियंका सेन। जी जी सॉरी सर। या प्रियंका सेन। प्रियंका सेन, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, आप तैयार रहिए, रेडी रहिए, तो हम आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट प्रेजेंटर हमारे एडवोकेट सरिता, उत्तराखंड से। सुन पा रहे हो सरिता जी? सरिता, कनेक्ट योर प्रेजेंटेशन। आपका टॉपिक है न्यायालय, कोर्ट मैरिज, रिलेशन एंड डाइवोर्स का जो इम्पैक्ट है मेंटल हेल्थ के ऊपर और उसके सोशल इम्पैक्ट। Thank you, sir. Yeah. Please turn on your camera and you can continue. You are most welcome.
मेरा नाम सरिता है और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। नेशनल लाइव है, ओवरऑल इंडिया। प्लीज कंटिन्यू सरिता। मैं एक अधिवक्ता भी हूँ। मैं आज न्यायालय विवाह, वैवाहिक संबंध एवं तलाक का मानसिक एवं सामाजिक प्रभाव जो हो रहा है उसके बारे में कुछ बताऊंगी। भारत में विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत मान्य एक वैधानिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से दो बालिग व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से विवाह कर सकते हैं। यह विवाह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता एवं संवैधानिक अधिकारों का प्रतीक है। मानसिक एवं सामाजिक प्रभाव जो आजकल काफी हो रहा है, वैवाहिक जीवन में तनाव हो रहे हैं इन चीजों से। न्यायालय विवाह करने वाले दंपतियों को कई बार पारिवारिक असहमति, सामाजिक आलोचना एवं भावनात्मक तनाव का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक अस्वीकृति के कारण चिंता, तनाव, अकेलापन तथा आत्मसम्मान में कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जब हमारे फैमिली वाले एग्री नहीं होते हैं इसमें, तो दोनों परिवारों में और दोनों दंपति जीवन जो होते हैं वो काफी स्ट्रगल में रहते हैं। सामाजिक समर्थन एवं पारिवारिक सहयोग मिलने पर दंपति इन चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं तथा उनका वैवाहिक जीवन अधिक स्तर एवं सफल हो सकता है। अगर दोनों फैमिली एग्री है तो दोनों दाम्पत्यों का जो जीवन है वो सुखी से और सही तरीके से रहता है। वैवाहिक संबंध एवं विवाद, न्यायालय विवाह के पश्चात पति पत्नी के बीच विश्वास, संवाद एवं आपसी सम्मान अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि संबंधों में मतभेद उत्पन्न हो तो उन्हें संवाद, परामर्श, काउंसलिंग एवं मध्यस्थता, मीडिएशन जिसे कहते हैं, के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगर हमारा पारिवारिक जीवन अगर सही नहीं चल रहा है तो हमें इस पर बैठकर बात करनी चाहिए, समय देना चाहिए। अगर थोड़ा सा विवाद है तो उस पर टाइम लेना चाहिए। ये नहीं कि गुस्सा होकर यहाँ बातें कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से हमारा पारिवारिक वैवाहिक जीवन है उसमें काफी उलझने भी और आती हैं, जिससे डाइवोर्स के वो हो जाते हैं, तालाक एवं उसका प्रभाव पड़ने लग जाता है। जब पति पत्नी के बीच मतभेद इतने गंभीर हो जाएं कि साथ रहना संभव ना हो, तब कानून तलाक का विकल्प प्रदान करता है। तलाक का प्रभाव केवल कानूनी ही नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर भी पड़ता है। तलाक की स्थिति में व्यक्ति को तनाव, अवसाद, भावनात्मक पीड़ा एवं सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से बच्चों पर इसका प्रभाव काफी पड़ता है। जब हमारा आपस में पति पत्नी का विवाद होता है तो उसमें सबसे ज्यादा असर बच्चों पे पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो काफी नाजुक होते हैं। उनको सही और गलत का वो नहीं होता है। वो सोचते हैं कि हमारे मम्मी पापा के बीच में हो क्या रहा है, जिसका असर अधिक गहरा होता है। इसलिए तलाक से पूर्व समझौते, परामर्श एवं वैवाहिक संबंधों को सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसका निष्कर्ष यह है कि न्यायालय विवाह एवं तलाक दोनों ही व्यक्ति के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों से जुड़े विषय हैं। एक सफल वैवाहिक जीवन के लिए आपसी विश्वास, सम्मान एवं संवाद आवश्यक है। वही संबंधों के असफल होने की स्थिति में कानून द्वारा उपलब्ध वैधानिक उपायों का सम्मान पूर्वक उपयोग किया जा सकता है। समाज को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वैवाहिक चयन एवं गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। और हमारा उत्तराखंड पहला राज्य है जिसमें यूसीसी लागू हो गई है। पति पत्नी क्या कहते हैं, शादी के बाद बिना रजिस्टर्ड कोई शादी अलाउ नहीं है। उत्तराखंड जो है पहला राज्य है। और थैंक यू वेरी मच सर। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। थैंक यू मिस सरिता जी। Thank you very much, Advocate Sarita. On behalf of everyone present here today, I would like to express our sincere gratitude for your enlightening and impactful presentation. Your insights have helped us understand the importance of legal awareness, healthy relationships,
effective communication, and emotional well-being. You have explained how relationship influence mental health. You have highlighted the importance of understanding legal rights and responsibilities, and you have sensitively addressed the emotional and social consequences that separation and divorce can have on individuals and families. Your presentation has not only increased our knowledge, but has also encouraged us to approach these issues with greater empathy, maturity, and understanding. Thank you for sharing your expertise, experience, and valuable time with us. Please join me in giving another huge round of applause to Advocate Sarita ji. Dear participants, as we approach the conclusion of today's workshop, let's reflect on the important lesson we have learned. Today we learned that a positive mindset helps us overcome challenges. Mental health deserves care and attention. Stress and anxiety can manage through healthy coping strategies. Healthy relationships contribute to emotional well-being. Legal awareness helps individuals make informed decisions, and perhaps the most important lesson of all, every human being deserves understanding, dignity, and support. Friends, mental health awareness is not just about learning information, it is about changing attitudes, it is about reducing stigma, it is about creating support communication, it is about recognizing that every person has struggle that may not be visible, and it is about choosing kindness whenever possible. Before we conclude, I would like to share a message with everyone present here today. No matter where you are in life, no matter what challenges you may be faced, no matter how difficult things may seem at this moment, please remember you are stronger than you think, you are more resilient than you realize, and your story is not over. Every difficult chapter eventually passes. Every storm eventually settles. Every challenge carry an opportunity with growth for growth. Every individual has the ability to heal, learn, and move forward. Never lose hope. Never underestimate your potential, and never hesitate to seek support when needed, because seeking help is not weakness. Seeking help is courage. Ladies and gentlemen, as we conclude the meaningful workshop, it is my privilege to extend heartfelt thank you everyone who contributed to its success. First and foremost, I would like to express our sincere gratitude to our respected speaker, Ms. Unti Desai, Ms. Manju Chhattisgarh, Ms. Priyanka Sen, Advocate Sarita ji. Thank you for sharing your visible knowledge, experience, and insight. Your contribution have enriched this workshop and inspired all participants. I would also like to thank our organizing team, volunteers, coordinators, technical staffs, and everyone working behind the scenes. Since your dedications and hard work made this event possible, to all participants, thank you for your active participations, attentive listening, thoughtful engagements, and positive energy throughout the programs. Your presence has made this workshop meaningful and successful. Now we are continuously moving towards, अभी हमारे नए पार्टिसिपेशन में प्रेजेंटर्स आ रहे हैं. प्रियंका सेन, आप अभी कनेक्ट करेंगे. आपका जो टॉपिक है प्रेजेंटेशन का, stress and anxiety management in adulthood and middle adulthood. Please welcome your in Excellent Opportunities Association, Priyanka ji.
प्रियंका सेन, प्रियंका सेन, आवाज आ रही है आपको? अपना माइक ऑन करिए और कैमरा भी ऑन करिए। अच्छा, आपके पास टाइम है प्रियंका सेन। अभी जिसने फीडबैक फॉर्म को फिल नहीं किया है वो अपना फीडबैक फॉर्म को जरूर फिल कर ले। जिसके पास जो फीडबैक फॉर्म को फिल करेगा उसको प्रेजेंटेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, और जिसने पार्टिसिपेट किया है उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। प्लीज यू कैन। बोलते रहो सर, बोल रहे हो। आपके भी फीडबैक फॉर्म लॉन्च किया है मैंने, इसे सब भरें प्लीज। अपने अपने फीडबैक दें कि ये सेशन कैसा रहा, आगे इस तरह के सेशन हमें करवाने चाहिए कि नहीं करवाने चाहिए। सभी लोग जितने भी पार्टिसिपेंट है वो अपनी फीडबैक जरूर दें। क्या ये फीडबैक फॉर्म शो हो रहा है स्क्रीन पे? हेलो हेलो। हेलो। सर प्लीज शेयर कीजिए, फीडबैक फॉर्म बंद हो गया। अच्छा, मैं शेयर कर रहा हूँ आप सबके बीच में, प्लीज इसे फिल करें।